Dear students, good morning. Students, let's start reading the next part. Okay. The speech, the statement made by Derry. Oh no, I have heard a lot of things. When Mr. Lamb asks Derry whether he has heard the only this single one thing in his whole life, so Derry refuses. He denies, saying that he has heard a lot of number of things. Mr. Lamb, so now you keep your ears shut. Okay? Mr. Lamb tells him that he should keep his ears totally shut every time. Derry, you are peculiar. The word peculiar means strange. Derry tells Mr. Lamb that he is quite peculiar. He looks so strange in his nature and behavior. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. Derry also tells Mr. Lamb that he speaks all the words quite strangely. He speaks all words quite strangely. He asks many questions. He doesn't understand what he really wants to say him. वो कहता है कि आप बड़े अजीब से आदमी हो, अजीब सी बातें कर रहे हो मेरे साथ, आप प्रश्न भी पूछ रहे हो मुझसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या चाहते हो. मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस. Mr. Lamb tells Derry that he likes sitting with people. He likes sitting with people. In other words, he likes the company of people. Have company. He also wants to sit with the people and share his feelings with them. You don't have to answer questions. Okay? He tells Derry that he need not answer his questions. उसने कहा कि तुम्हारे को मेरे प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है. यदि आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए. You don't have to stop here at all. The gate is open. Now being a little agitated, थोड़ा सा गुस्से में दिखाई देते हुए, थोड़ा सा गुस्से से भर करके, Mr. Lamb tells Derry that he need not stop here in his garden any longer. If he wants to go back to his home, he can go. The gate is open. उसको कह देता है कि अब तुम्हें यहाँ पर कोई ज़्यादा समय के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है. यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ तो आप जा सकते हो, चाहिए. Derry, yes. Firstly, Derry responds in affirmative, saying that he is totally ready to go back to his home, but he does not take any step from there. वह वहाँ से हिलता ही नहीं है, वो वहीं पर खड़ा हो जाता है. इसलिए तो बोलता है ना, but Mr. Lamb, I have a high of bees behind those trees over there. Oh, making a distance at the far end, making a signal, making a hint or giving a signal at the giving a signal to the trees which are grown at the far end from there, at a distance away from. Okay, there. Mr. Lamb tells Derry that he has also got a hive of bees. उसने कहा कि देखो यहाँ से दूर वहाँ, ओवर देयर का मतलब थोड़ी दूरी के ऊपर बता के कह रहा है कि यहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर वहाँ उन पेड़ों के पीछे मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ है. सम हियर बीज एंड दे से बीज बज. सम हियर बीज, कुछ लोग वहाँ पर मधुमक्खियों के उस छत्ते के पास खड़े होकर के मधुमक्खियों के पास आसपास बन करके उनको सुनते हैं और वे कहते हैं कि मधुमक्खियाँ गुनगुना रही हैं, शोर कर रही हैं. बट वैन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम लंबे समय तक के लिए उन मधुमक्खियों के पास खड़े होकर के और उनको सुनोगे, देहम, तो तुम्हें लगेगा कि वो शोर नहीं मचा रही बल्कि वो गा रही हैं, गीत गा रही हैं, गायन गा रही हैं. एंड हम मीन्स सिंग. हेयर द वर्ड हम मीन्स सिंग. आई हियर देम सिंगिंग माई बीज. ओके. Mr. Lamb also tells Derry that he always feels like, okay, hearing the singing of these old bees. Through these statements, or by making these statements, Mr. Lamb
wants to bring a change in the mentality, in the sick or poor mentality of this small boy, 14-year-old child Derry, so that he can also start spending a lot of time in the company of the people, so that he can also take the presence of the people quite positively. Still, since he does not sit or stand by the side of the people any longer, and he thinks that people are badly afraid of him, and he leaves the place. इसलिए वो कहता है कि कुछ लोग मधुमक्खियों के पास आकर के जब खड़े होकर के उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मधुमक्खियाँ तो वैसे शोर मचा रही हैं, लेकिन जब कहता है कि लंबे समय तक वो मधुमक्खियों के पास खड़े होकर के जब उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो उनको लगता है कि मधुमक्खियाँ कुछ गा रही हैं, और कहता है मुझे अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनना बड़ा पसंद है। Derry, but I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. Derry tells Mr. Lamb that he has liked his garden from all sides. All the things in his garden have really appealed to his senses. Since he had already seen all the things over the wall, bending his body over the wall, and leaning over the wall, Leaning, leaning over the wall, and he had been badly attracted. That's why he does not want to go back to his home, and he wants to stay in his garden, for a long time. वो कहता है कि लेकिन मैं तो इसको पसंद करता हूँ आपके बगीचे को, मैं यहाँ पर अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपका ये बगीचा बेहद रूप से पसंद आ गया था। जब मैंने दीवार के ऊपर से इस बगीचे की तरफ देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था बगीचा। Mr. Lamb, if you had seen me, you would not have come in. Mr. Lamb tells him, because this the statement is of the unfulfilled condition. So through this statement, Mr. Lamb tells him that if he had seen him, he would not have come in. He would not have entered the garden. यदि तुमने मेरे को देख लिया होता, तुम्हारी निगाह मेरे पर गिर जाती, तो शायद तुम मेरे बगीचे में प्रवेश नहीं करते। Derry does not agree with Mr. Lamb, and he tells him that he would have definitely entered his garden. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो फिर भी आपके बगीचे में आ जाता। Mr. Lamb कहता नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं आते आप। Derry, it would have been trespassing. Derry tells Mr. Lamb that it means he had been the accused of trespassing. यानी कि मैं तो एक इलीगल तरीके से ट्रेसपासिंग स्टैंड्स फॉर इलीगल एंट्री इनटू सम प्लेस, और इन सम प्लेस किसी स्थान के अंदर गैर कानूनन तरीके से प्रवेश करना। उसने कहा कि शायद ऐसा है कि इसका मतलब तो मैं ये कहूँ कि भाई मैंने आपके बगीचे में गैर कानूनन तरीके से प्रवेश कर लिया है और मैं दोषी हूँ। मिस्टर लैम, ओह दैट्स नॉट वाई। उसने कहा अरे नहीं, यही तो बात है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, क्यों आप ऐसा कह रहे हो, आप ऐसा क्यों मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप आ गए हो, कोई बात नहीं, कैसे भी आए हो, आप मेरे पास आ गए हो। Derry, I don't like being near people. I don't like being near people means I don't want to make my nearness with the people. वो कहता है कि मैं लोगों के साथ में अपनी निकटता नहीं बनाना चाहता हूँ। It means Derry tells Mr. Lamb that he does not want to live in the company of the people. When they stare, the word stare stands for look at something, look at somebody with stern eyes, खिंची हुई नज़रों से देखना, पैनी नज़रों से देखना। When they stare, when I see them being afraid of me, कहता है कि जब वे लोग मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं तो वो बड़े व्याकुल से होकर के, परेशान से होकर के मेरे चेहरे की तरफ टकटकी बांध के देखते रहते हैं, घूर करके देखते रहते हैं। और जब मैं उनको मेरी तरफ देखता हूँ, मेरी तरफ इस प्रकार से घूर करके देखती स्थिति में उनको जो मैं पाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग मुझसे भयभीत हो गए, मुझसे डर गए हैं, वो मेरे साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं, इस प्रकार की बात वो कहना चाहता है। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लिव इट। मिस्टर लैम कहता है यदि ऐसी बात है तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो, ताला लगा करके आप अपने आप को कमरे के ताला लगा करके अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर सकते हो। एंड नेवर लिव इट, और कमरे को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
Mr. Lamb tells Derry that if he does not want to sit with the people in the society and in his house also, so he should keep himself inside his house, inside a room and lock it up and should not come out of it. कहता है कि तुम्हें तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाहिए, कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए. There was a man who did that. Now he gives an example of a person who also got afraid of each and everything. वो कहता है मैं आपको एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ. लैम्ब जो है ना, उसका दिमाग, उसका विचार, उसकी सोच बदलने के लिए एक व्यक्ति को उदाहरण देता है. देयर वाज ए मैन हु डिड दैट. उसने कहा कि एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था इस दुनिया में, कहीं रहा करता था, उसने ऐसा ही किया. ही वॉज अफ्रेड. दैट मैन वॉज बैडली अफ्रेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. यू सी मीन यू अंडरस्टैंड कि आपको मालूम है उस व्यक्ति के बारे में. नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो डरा करता था. किससे? ऑफ एवरीथिंग. हर चीज़ से डर लगता था उसको, हर चीज़ से डर लगा करता था. दैट पर्सन यूज टू गेट अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. ओके, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. ही गॉट बैडली अफ्रेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. ए बस माइट रन हिम ओवर और ए मैन माइट ब्रीथ बैडली जॉर्म्स ऑन टू हिम. वो जब भी कभी अपने सामने से कोई बस को आती हुई देखता था तो उसको लगता था कि शायद ये बस मेरे ऊपर से निकल सकती है, मुझे कुचल करके जा सकती है, ऐसा उसको लगता था, डरता था वो. ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम. कोई व्यक्ति उसके पास से निकलता था तो उसको ऐसा लगता था कि उस व्यक्ति के मुख से घातक कीटाणु, उसके ऊपर खतरनाक कीटाणु वह व्यक्ति उसके ऊपर छोड़ सकता है. इसलिए वो किसी व्यक्ति के पास से नहीं निकलता था, निकलने से भी डरता था. और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ. वो कभी भी किसी गधे के पास से निकलता तो उसको लगता था कि ये गधा मेरे को लात मार करके मार सकता है, इसलिए मुझे इसके पास से नहीं निकलना चाहिए. और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन. और उसको यहाँ तक कि रात्रि के समय कभी बिजली खिमकती थी तो बिजली खिमकती हुई देख करके उसको ऐसा लगता था कि खिमकने वाली बिजली, चमकने वाली बिजली शायद मेरे ऊपर गिर सकती है. और ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम. और उसको यहाँ तक कि उसका ऐसा भी विचार होता था कि मैं यदि मान लो किसी लड़की से स्नेह करने लग जाता हूँ, प्यार करने लग जाता हूँ, हो सकता है वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाए. एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन. कभी उसके दिमाग में ये बात भी आ जाती थी कि सड़क पर चलते समय, रास्ते में चलते समय कोई केले का छिलका यदि आ गया तो वो बड़ा संभल के चलता था. लगता था कि केले के छिल पर यदि गलती से पैर रख दिया तो मैं स्लिप हो सकता हूँ, फिसल सकता हूँ. एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लॉफ देयर हेड्स ऑफ. और जब मैं केले के छिलके पर से फिसलूँगा तो लोग जो मेरे को देखेंगे बहुत ज़्यादा खुल करके हंसेंगे, ढाके लगा करके हंसेंगे. गफिंग का हो जाता है, गफ, लॉफ सो लाउडली. ओके, सो ही वेंट इनटू दिस रूम. इस प्रकार से ये सब विचार मन में लेकर के, इस प्रकार से इन सभी चीज़ों से डर करके, सिंस दैट द मैन वॉज बैडली अफ्रेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ओके, he did not want to pass by the side of anything, he did not want to see anything, he did not want to look at anything. So he had been totally negative in his thinking, in his thoughts. So one day he thought that one day he decided that he should lock himself up in the room, and he went into the room and locked the door and got into his bed and stayed there. Thinking so, he finally locked himself into the room, and he also locked the door of his room and got into his bed. चारपाई के ऊपर बिस्तर ओढ़ करके सो गया. एंड स्टेड देयर. और वहीं पर ठहरा रहा, रुका रहा. अब बाहर जाता तो डर लगता था, इसलिए उसने अपने आप को चारपाई के ऊपर ही उचित समझा रोकना. Derry forever. Derry asks Mr. Lamb whether the man lived in that room forever, permanently. Derry ने लैम्ब से पूछा क्या उस व्यक्ति ने हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके रखा, कभी बाहर आया नहीं. Mr. Lamb for a while. Mr. Lamb tells Derry that the man has not locked himself into some room permanently forever, but he remained into the room. He remained into his bed for some time, only for some time. कुछ समय के लिए वो रहा. Thereafter an incident occurred with him and he had to suffer a lot. Derry, then what? Derry asks Mr. Lamb, then what happened to that man? भाई कुछ समय के लिए तो वो अपने उस चारपाई के ऊपर अपने बिस्तर ओढ़ करके लेटा रहा, पड़ा रहा. उसके बाद में उसके साथ क्या घटना घटित हुई? मिस्टर लैम्ब, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड. हुआ क्या? उसके अपने सर के ऊपर कोई एक जो है ना दीवार पर लटकी हुई कोई एक तस्वीर थी, वो गिर गई. एंड किल्ड हिम,
एंड दैट द पिक्चर किल्ड हिम, और उस तस्वीर ने उसको मार दिया। डैरी लॉफ्स अलॉट, ओह व्हेन डैरी लिसन्स टू इट ऑल, जब डैरी इस प्रकार की बातें सुनता है तो बेटा बहुत ज़्यादा हंसता है। अच्छा, एक तस्वीर के गिर जाने से उसकी मौत हो गई। मिस्टर लैम्ब, यू सी, क्या आपको मालूम नहीं? डैरी, बट यू स्टिल से पेकुलियर थिंग्स, लेकिन अभी भी कुछ आप सर विचित्र बातें कर रहे हो मेरे साथ, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। मिस्टर लैम्ब, पेकुलियर टू सम, कुछ लोगों से इस प्रकार की विचित्र बातें करनी ज़रूरी होती हैं, अजीब अजीब सी बातें करनी ज़रूरी होती हैं। डैरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे? डैरी ने पूछा कि आप पूरे दिन भर क्या करते हो? डैरी आस्क्स मिस्टर लैम्ब व्हाट ही डज ऑल डे लॉन्ग। मिस्टर लैम्ब, सिट इन द सन, रीड बुक्स, ओह यू thought it was an empty house, but inside it is full books and other things full. मिस्टर लैम्ब कहता है कि मैं करता क्या हूँ? मिस्टर लैम्ब टेल्स डैरी दैट ही सिट्स इन द सन, इन द सनशाइन, वो कहता है सूर्य की चमक में, सूर्य की धूप में मैं बैठ जाता हूँ और पुस्तकें पढ़ता हूँ। अरे तुमने सोचा था कि मेरा मकान तो खाली है, लेकिन अंदर ये मकान अंदर पुस्तकों से भरा पड़ा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे भरा पड़ा है, पूरा का पूरा मकान भरा पड़ा है। डैरी, बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़। डैरी कहता है लेकिन खिड़कियों के ऊपर तो किसी प्रकार के पर्दे तो नहीं लगा रखे आपने सर, खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं लगा रखे आपने। मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स। कितना सिंपल सेंटेंस। मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब कहता है मुझे पर्दे लगाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं अपने हमेशा खिड़कियाँ खुले रखता हूँ। शटिंग द थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन मीन्स the things which are inside the house will remain inside, the things which are outside the house will remain outside. जो चीज़ बाहर है वो बाहर रहेंगी, जो चीज़ अंदर वो अंदर रहेंगी। I like the light and the darkness, वो कहता है he likes both the things, light and darkness, कहता है मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। and the windows open, और मुझे खुली खिड़कियों से बड़ा स्नेह है, मैं खिड़कियाँ खुली रखता हूँ। to hear the wind, ताकि मैं बाहर चलने वाली हवा की आवाज़ को सुन सकूँ। Daddy, yes, I like that. Oh, Daddy also tells that he also likes the wind. He also feels like hearing the sound of the winds. कहता कि मुझे भी बाहर की बहुत चीज़ें, हवा की, मुझे भी हवा वास्तव में बहुत बेहद रूप से अच्छी लगती है। When it is raining, I like to hear it on the roof. जब कभी भी बरसात हो रही होती है तो मैं छत पर चढ़ करके, whenever it is raining, I लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, कहता है मैं छत के ऊपर चढ़ करके और मैं इसको सुनना पसंद करता हूँ। बहुत एक अच्छी बात उसने कही यहाँ पर डैरी ने कि भाई वास्तव में मुझे प्राकृतिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मिस्टर लैम्ब, सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू? मिस्टर लैम्ब टेल्स, व्हेन मिस्टर लैम्ब गेट्स इट ऑल फ्रॉम डैरी, ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज एवरीथिंग, ही हैज़ स्टिल सम सेंसेज इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट। मतलब कहना ही चाहता है कि शायद लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ा अभी नुकसान नहीं हुआ है। जब तुम बाहर अच्छे मौसम के दौरान हवा की आवाज़ को सुनना पसंद करते हो तो इसका मतलब तुम अभी भी कुछ सुधरने की स्थिति में हो। नॉट ऑल टुगेदर, वो कहता है कि एक साथ तुमने सभी चीज़ें अभी तक नहीं खोई हैं। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, अरे तुम बाहर की चीज़ों को देखना और सुनना पसंद करते हो ना, वास्तव में तुम अच्छे आदमी हो। इसका मतलब तुम्हें अच्छी चीज़ें लगती है, बाहर की सब चीज़ें सुनना पसंद करते हो। तो देखो, यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते तो हो, यू लिसन, सुनाई देती है ना। डैरी, दे टॉक अबाउट मी, ये लोग मेरे घर के, ये जो घर के लोग, दे स्टैंड्स फॉर द पीपल ऑफ हिज हाउस, ये मेरे परिवार के लोग मुझसे बातचीत करते हैं। जब भी कभी मेरे बारे में बातचीत करते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। किस तरह की बातचीत करते हैं देखो, दे टॉक अबाउट मी, मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में बातचीत करते हैं। डाउन स्टेयर्स, नीचे के हिस्से में मेरे घर के लोग जो रहते हैं वो बातचीत करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नीचे नहीं रहता हूँ ना तो वो मेरी गैर हाजिरी में मुझसे मेरे बारे में कुछ कहते हैं। व्हाट विल ही एवर डू, पहला पर्सन, वो ऐसा करते हैं कि देखो क्या कभी यह डैरी, यह ड्रैक क्या कभी कुछ कर पाएगा। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम सभी मर चुके होंगे, हम सभी यहाँ दुनिया से अलग हो जाएंगे तो फिर ये अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकेगा, किस प्रकार की घटना इसके जीवन में घटित होगी। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, गेट ऑन मीन प्रोग्रेस, आखिरकार ये इस दुनिया में किस प्रकार से अपने जीवन को चलाएगा, कैसे उन्नति करेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस प्रकार का भद्दा चेहरा लेकर के ये लड़का बना हुआ है, इसका कितना बेकार चेहरा है, कोई इसको पसंद नहीं करने वाला है। विद दैट ऑन हिज फेस, देखो इसके चेहरे पर कितना ज़्यादा बड़ा जले हुए का निशान पड़ा हुआ है। दैट्स व्हाट दे से, सर यही सब चीज़ें वो लोग मेरे को कहते हैं। बड़ा बुरा लगता है मेरे को इस तरह की बातें करते हैं, बहुत बुरा लगता है।
है बेटा. Now the rest part of this play will be attended by us in the next lecture.